Hello everybody, good morning and welcome to the Edu for IS the Hindu analysis class. So we are starting first. जैसा कि हमने कल भी किया था, सबसे पहले हम जो कल वाले क्वेश्चंस हैं उनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स एंड फिर हम आज का जो हिंदू है उसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. So firstly, this is the question for prelims. So kindly read the statement. I hope कि आप सब लोगों ने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया होगा. So kindly put your answers in the comment section. ठीक है. What is the correct answer? Consider the following statement with respect to the Himalayan vulture. Number one statement, the first instance of captive breeding of the Himalayan vulture has been recorded at the Assam State Zoo, Guwahati. It is listed as endangered under the IUCN Red List. Now, we discussed this topic related to Himalayan vulture yesterday, and we found that though this is the first time that such kind of captive breeding actually took place in Assam Zoo, okay, in Guwahati, but under IUCN Red List, the status of Himalayan vulture is not of this endangered, but rather it is list threatened. ठीक है. तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो IUCN रेड लिस्ट के अंडर जो स्टेटस है वो रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे एंडेंजर्ड नहीं है, लिस्ट थ्रेटन्ड है. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए ओनली. ठीक है. सेकंड जो क्वेश्चन था दैट वाज सब्जेक्टिव फॉर मेंस फ्रॉम मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो सेकंड क्वेश्चन है कि शुड द एज ऑफ कंसेंट बी रिवाइज्ड इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन. 10 मार्कर 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर करना था. तो कल हमने एक डिस्कस किया था आर्टिकल, दैट इज शुड द एज ऑफ कंसेंट बी रिवाइज इन इंडिया और नॉट. तो उस आर्टिकल में हमने यही देखा था कि जो दोनों ऑथर्स थे, लीड ऑथर्स, ठीक है, श्रद्धा चौधरी जी एंड भारती अली, तो इन दोनों लोगों का ये मानना था कि दिस इज समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स और देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दिस कि हाँ इसको रिड्यूस करके 16 पे लाओ या 14 पे लाओ, बट बिफोर दैट वी नीड टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर दैट. ठीक है. एंड उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट जो था डिस्कस करने का, सो हाउ यू कैन बिल्ड अप ऑन योर आंसर्स. तो सबसे पहले वही हमने जैसे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड. तो इंट्रोडक्शन में आपने सिंपली वन ऑफ द थिंग विच यू कैन इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट आर्टिकल इटसेल्फ. ठीक है. कि वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा था. तो द बॉम्बे हाई कोर्ट in a case related to this hearing an appeal by a man who was sentenced to 10 years in prison for maintaining a consensual relationship with a minor girl. Okay. So this was the case related to Bombay High Court, in which the Bombay High Court said that it is high time India considered reducing the age of consent. Fine. The court pointed out that after enactment of this POCSO Act, that is Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, many adolescents are being prosecuted for consensual relationship with the minor girls. ठीक है. So this is one. इतना लंबा नहीं लिखना. You can simply cut it down to what actually the Bombay High Court said. ठीक है. That the court pointed out that after this enactment of POCSO Act 2012, now is the time that India should think of reducing its age of consent. ठीक है. So this much 3 to 4 lines sufficient for a 10 mark question. उसके बाद बॉडी की अगर हम बात करें तो हमने इसमें देखा था कि दोनों ही ऑथर्स जो हैं कह रही हैं कि देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स फॉर दिस. ठीक है. पहले हमें उसके लिए ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली व्हिच गवर्न दिस काइंड ऑफ रिलेशंस. सो वी हैव we cannot go for reducing the age without considering things like cognitive capacity, psychosocial maturity and emotional development of the minors. ठीक है. Even economic factors could be considered, fine, because they might be relevant as well. So it is most important to keep the discussion rather practical, fine, in terms of what it is that we are trying to achieve. उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट अंडरलाइन की गई थी वो ये कि जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो सबसे पहले पुलिस इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है. ठीक है. जिसकी वजह से माइनर्स डर जाते हैं. देन फाइन आफ्टर जो इफेक्ट होता है वो एक ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है माइनर्स पे. तो इसकी बजाय इसमें सॉल्यूशन जो प्रोवाइड की गई थी, जो कि आप वे फॉरवर्ड है कंक्लूजन में लिख सकते हो, यही कि समवेयर
समवेयर कहीं ना कहीं कि जो इंटेरोगेशन है, जो बातचीत है, जो क्वेश्चनिंग है फर्स्ट राउंड में, वो कौन करे? या तो कोई काउंसलर करे, या एट द लेवल ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, या काउंसलर्स कर सकते हैं, या कोई यू नो फ्रॉम एनजीओ साइड, कोई भी कोई let us say experience or expert in that particular field, ठीक है, who is dealing with such kind of cases from last many years, not directly the police itself, ठीक है. So this could be one of the solutions. उसके बाद तो एज ऑफ कंसेंट जो इंडिया में था, दैट इज प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, इट वाज 16 years indeed in the Indian Penal Code, but cases were still being registered, ठीक है. So this is how we try to balance our answers to remain neutral, कि on one hand you are saying कि हाँ एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस करनी चाहिए, but on the other hand you are countering your own answer that even this age of consent was at the 16 years was 16 years in the Indian Penal Code before the enactment of POCSO Act 2012, but it does not but cases were still being registered under this act even though when it was 16 years. So therefore reducing the age of consent to 16 years doesn't guarantee that such cases won't be, okay. So this is another point you can mention under your body part. Then अगर body के बाद हम solutions की बात करें, because this is a question kind of where you better need to provide a solution or the way forward instead of just concluding this question. So better to provide way forward, that is solution, what can be solution, what government can consider. So number one solution can be first is related to interrogation, जहाँ पे कोई counselor करे या expert member करे instead of police. First. Second could be one way to do it might be to have different ages for consents for different kinds of activities, okay, but it is again something that needs to be looked into far more detail, okay. So different kinds of activities के लिए different ages of consent हम provision कर सकते हैं. Then apart from that, the next kind of solution could be someone interview the child and is able to figure out whether the child wants to proceed with the complaint or not. The one case that we have already discussed. Then another ground could be if an FIR, let us say, being registered and the police find out during the investigation that there was non-exploitative consensual intimacy, then they can file a final report that can go to the court, ठीक है, and therefore close the case, ठीक है. अदरवाइज इसमें रिग्रेस पनिशमेंट है, दैट इज अप टू फ्रॉम द 10 years to 20 years, ठीक है, जो भी इन्वॉल्व हैं इन केसेस में स्पेशली. तो देयरफॉर हमारे को और सॉल्यूशंस क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक let us first need more and better information on what kind of sexual practices actually adolescents are engaging in and at what ages and the impact of these interactions on their overall growth. So this could be another point of suggestion, ठीक है. तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो वे फॉरवर्ड में या सॉल्यूशन एज आप प्रोवाइड कर सकते हो. तो दिस वुड बी कंप्लीट आंसर, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है. बॉडी में आपने मेनली प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है कि कम करने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एंड फाइनली आपने सॉल्यूशन आंसर को कंक्लूड कर देना है, ठीक है. तो इन कीवर्ड जो हमने डिस्कस किया, अगर ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में हैं, अगर आप लोगों ने लिखे हैं, so you can give your you can self evaluate your answer as well and you can give around 4 to 4.5 marks to your answer. But अगर ये points नहीं हैं तो please do read this article again, go through what we have discussed yesterday and then again try to rewrite your answer, ठीक है. तो ये कुछ keywords थे जो आपके answers में reflect होने चाहिए. Okay, now we are starting with today's Hindu analysis. उसके बाद फिर आज के पेपर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे सिमिलर फॉर्मेट, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जो आप सॉल्व करोगे एंड मंडे को हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक. चलो, तो टुडे इज द डेट 5th of August, ठीक है. वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज और द फ्रंट पेज ऑफ द टुडेज हिंदू. देखते हैं क्विकली कि क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर से. This is the first page. The front page you can say Supreme Court
stays Rahul's conviction for Modi's surname remark. तो जो कन्विक्शन हुई थी राहुल गांधी को, ठीक है, मोदी सरनेम यूज करने के दौरान जो रैलीज में यूज किए थे, ठीक है, इन अ डेरोगेटरी मैनर, सो उसको जो है उस पर स्टे लगा दिया उस कन्विक्शन पे, ठीक है, मीन्स नाउ ही इज फ्री फ्रॉम सच काइंड ऑफ कन्विक्शन. So it's Supreme Court says on what ground actually Supreme Court ने किस ग्राउंड पे स्टे लगाया इस केस के ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूरत कोर्ट जो है actually failed to give even one reason for sentencing Congress leader to 2 years jail term that resulted in his disqualification as MP. तो एक प्रोविजन है कि राइट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कि अगर किसी भी एमपी को 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो वैलिड नहीं रहेगी, मीन्स दैट पर्सन स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल और दिस राज्यसभा एज वेल भी वो मेंबर है, ठीक है. तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट्स व्हाई यू सी दिस फिगर, ठीक है. However, it adds the remark was not in good taste. So you can say balancing, stay from the Supreme Court. ये भी कहा साथ में कि जो इन्होंने यूज किया था remarks for this Modi surname, that was not in a good taste. Alongside that, even सूरत हाई कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोकल कोर्ट की जजमेंट थी for 2 years sentencing to Mr. Gandhi was not, based on reason and logic. ठीक है. See. SC upholds ASI study at Gyanvapi Mosque. So finally, Archaeological Survey of India क्या करेंगे? Finally going to survey this Gyanvapi Mosque complex. ठीक है? Find out whether there is some proof of other religion as well or not as claimed by the other side. ठीक है? So finally ASI has started its survey. इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड लैंडस्लाइड क्लेम्स 3 लाइव्स. ओके, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. पोजीशन कंटिन्यूस प्रोटेस्ट ओवर. ओके, देखते हैं. Ahead of assembly election, Rajasthan approves formation of 19 new districts. Wholesale Rajasthan government is going to come up with the wholesale districts. You can see 19 new districts, not 1 or 9, it's 19. So with an eye on upcoming assembly election, the Congress government in Rajasthan finally decided to form 19 new districts. And now the total number of districts in the country's largest state in terms of area would be 50. Fine. So of course these are all, you can say, the political actions, politically motivated actions, you can say. But keep in mind, because the RS exam so there are going to be conducted 2-3 months. So of course you should, it's in total number of districts in Rajasthan is 50. Okay, next page. Not that relevant. स्टेट्स पेज पे आ जाते हैं. फ्राइडे प्रेयर सबड्यूड पीसफुल. सन्नू में जो वायलेंस चल रहा है से रिलेटेड ये है. एससी नॉमिनेट, सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया जस्टिस जयंत नाथ एज द न्यू डीईआरसी चेयरपर्सन. ठीक है, डीईआरसी क्या है? इट इज दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. After the Delhi government and lieutenant governor failed to reach a consensus on a name. ठीक है, so 3-judge bench headed by Chief Justice of India has finally appointed Justice retired judge from the former Delhi High Court judge Justice Jayant Nath as the pro tem, that is temporary chairperson of the DRC. ठीक है, इस मंथ के बाद बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूशन सेंटर्स. ठीक है, एक सर्वे ने, एंड दिस सर्वे वाज लेड बाय नोटेड इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेज. ठीक है,
So you can see this is not just a case of this, the particular Bihar, but majority of the states you see that now the education at a greater extent has been, this outsourced to the tuition centers. Okay, next is Assam's Manas Tiger Reserves 63% short of sanctioned staff, environment minister told. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मानस टाइगर रिजर्व जो है वो है कहाँ, दैट इज इन असम, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, हम स्टाफ के शॉर्टेज है उसमें नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से। तो इंपॉर्टेंट फॉर अस इज मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न असम में ये लोकेटेड है मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, इज मूविंग फ्रॉम अ लो टू हाई टाइगर डेंसिटी एरिया, दिस इज अ गुड न्यूज। बट द बैड न्यूज फॉर द नेशनल पार्क विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अलॉन्ग विद द मोर पॉपुलर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। So you have Kaziranga as well, Manas Tiger Reserve as well, both in Assam, ठीक है। And remember Manas is जो है आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एक, ठीक है। So these are the important information related to your Manas Tiger Reserve, तो ध्यान रखना। ओके, एंड इसमें बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेशन की जा रही है, किसकी, राइनोज की, ठीक है। वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन, ये मानस में रिलोकेट किया जा रहा है, ये न्यूज़। पेज पे देखते हैं। तो अगेन फ्रॉम द स्टेट्स, okay, so Bengal passes bill on search panel for appointment of VCs. Finally, a conflict जो ongoing थी, that is between West Bengal government and between this governor of the state related to the appointment of vice chancellors of the universities, state universities. So finally, West Bengal के legislative assembly ने एक bill पास किया और उसमें एक कमिटी बनाई है जिसमें कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इस कमिटी में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो होंगे, मेंबर्स कौन से होंगे, तो द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विल नाउ हैव नॉमिनीज ऑफ द चांसलर, चांसलर कौन होता है, गवर्नर इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज, चीफ मिनिस्टर, यूजीसी नॉमिनी, स्टेट गवर्नमेंट एंड द चेयरमैन वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। तो इन लोगों के रिस्पेक्टिव नॉमिनीज होंगे इस बोर्ड में जो कि डिसीजन दैट will become the VCs of that particular university, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फाइनली कंक्लूजन क्या है, पासिंग रेफरेंस, यू कैन जहाँ भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आपको क्वेश्चन इस आ जाता है गवर्नर के रिलेशंस में या इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई गवर्नर की, तो उसमें आप एक एज अ डायमेंशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा चल रहा है, केरला में भी, use it as one of the dimensions. Okay, Chandrayaan 3 covers 2/3 distance to moon. Finally, cover. चलो एडिटोरियल पे आ जाते हैं। फाइनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, तो इस पे द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, डेटरेंस भी हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस होता क्या एग्जैक्टली, तो फिर से कुछ वैसा सिमिलर सा ही आर्टिकल है, सो इसलिए फिर इसमें यूएस, रशिया, यूक्रेन और बातें होंगी, नेटो की बात होगी, जो कि हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब इन डिटेल। सो आई एम नॉट गोइंग अगेन टू डिस्कस दिस आर्टिकल, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अगेन मोर इम्पोर्टेंट, अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल रेप्रोचमेंट, ठीक है। आर्टिकल में है क्या, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको पहले कि इस पूरे आर्टिकल में है क्या। जहाँ तक बात है सऊदी इजराइल रिलेटेड ये आर्टिकल है, एंड यूएस कोशिश ये कर रहा है कि दोनों की
रिलेशंस या जो अप्रोचमेंट है दोनों के बीच में वो बढ़ाई जाए, ठीक की जाए। बट अगर दिस आर्टिकल इज ऑफ कोर्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, में हम इंडिया का एंगल भी देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो भी चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी देखने को मिलता है, बिकॉज इन कंट्रीज के साथ हमारे भी रिलेशंस ठीक है, हमारे भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो इसलिए यूएस की कोशिश जो है वो सऊदी एंड इजराइल की जो रिलेशंस हैं आपस में, प्लस यूएस की जो रिलेशन इन दोनों कंट्रीज के साथ उसको ठीक करने की है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इजराइल एंड यूएस के रिलेशंस ठीक मतलब कुछ रीजंस की वजह से नहीं चल रहे हैं जितने कि पहले होते थे, आज से 2-4-5 साल पहले। प्लस सऊदी अरेबिया के साथ भी यही दिक्कत है यूएस की। क्यों? क्योंकि दो मेजर इश्यूज हैं इसके पीछे। एक तो ये कि जो बेंजामिन नेतान्याहू है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, वो एक्चुअली इस टाइम पे एक एक्सट्रीम यू कैन से राइट विंग कोलिशन की गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, ठीक है, लीड कर रहे हैं। तो एक तो ये इशू है, प्लस अनदर इशू इज लास्ट वीक आपने देखा होगा कि बेंजामिन नेतान्याहू की जो सरकार है उसने जुडिशरी की पावर को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए एक बिल लेके आई थी, जिसके लिए कि इजराइल में काफी लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। ये दोनों ही ऐसे इश्यूज हैं जिसको कि यूएस की जो गवर्नमेंट है या जो यूएस है वो क्लियर कट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो दिस इज वन इशू ऑफ कंफ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट यू कैन से, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस एंड इजराइल रिलेशन। नाउ अनदर एंगल इज ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है उसके भी रिलेशंस पहले काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज बिटवीन यूएस एंड रशिया वो द पार्टनरशिप वाज रिलेटेड टू द एनर्जी सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अर्लियर यूएसए यूज्ड टू इंपोर्ट लॉट्स ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल फ्रॉम दिस कंट्रीज, मिडल ईस्ट स्पेशली तो आप कहते हैं। तो इन कंट्रीज से स्पेशली सऊदी अरेबिया डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी यूएस की, बट नाउ यूएस हैज़ बिकम वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हुई है, तो इस वजह से रिलेशंस पे भी असर देखने को मिला है। प्लस देयर आर सर्टेन इंटरनल डायनेमिक्स एज वेल, इंटरनल डायमेंशंस टू दिस रिलेशंस एज वेल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीजन ये था कि एक देयर वाज अ जर्नलिस्ट, सऊदी जर्नलिस्ट used to write in the Washington Post as well, named Jamal Khashoggi, ठीक है। he was murdered actually in the Saudi Arabia itself, एंड सारा जो ब्लेम था वो लग गया किस पे? सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, कि उन्होंने जानबूझ के इनकी मर्डर कराई है, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट दिस आर्टिकल व्हिच वाज नॉट इन गुड टेस्ट विद द दिस क्राउन प्रिंस यू कैन से और द सऊदी गवर्नमेंट। तो इसलिए अगेन दिस वाज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन or bone of contention between US and this, because he used to write even in the Washington Post, he used to reside in US as well, so you can understand that somewhere his murder didn't go well with the US administration or government as well. The then government was led by, or the then president was of course this Donald Trump. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से रिलेशन जो हैं वो इन तीन कंट्रीज के आपस में बायलैटरल भी एंड मल्टीलैटरली भी, तीनों की अगर बात करें तो ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। नाउ अगर नहीं ठीक चल रही हैं तो क्या इसमें इनिशिएटिव्स हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस देयर रिलेशंस? तो सऊदी इनिशिएटिव्स, अगर सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो कंट्री जो कि बहुत ही इट्स इस्लामिक कंट्री, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद एक बड़ी कंजर्वेटिव रही है सऊदी अरेबिया रहा है स्टार्टिंग से इनिशियली, बट ओवर द टाइम यू सी स्पेशली ड्यूरिंग द रीन ऑफ the current crown prince Mohammed bin Salman, he is coming up with a lots of reforms, ठीक है। वहाँ पे पहले लेडीज को ड्राइविंग अलाउड नहीं थी, now they can drive, ठीक है। so there are lots of initiative he is taking which is in good terms with the modern day reforms or need of the hour as well. तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली काफ़ी इससे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, जो क्राउन प्रिंस हिमसेल्फ, उनके लिए काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है सऊदी अरेबिया में, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली लेड यू कैन से, और द गवर्नमेंट जो है वो मोर ऑफ मोनार्कियल काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन सऊदी अरेबिया और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन मिडल ईस्ट, इवन कि यूएई में भी आप देखते हो। तो आफ्टर नियरली 8 decades ऑफ यूएस सऊदी एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट, तो ये सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप थी बिल्ट ऑन एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट ऑफ 1945 मींस एनर्जी जो है स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड टू
be exported by Saudi Arabia to US, and in return US, provided security cover to the Saudi Arabia. Okay, so that's why it is called Energy for Security Compact of 1945. Riyadh, that is capital of Saudi Arabia, has been assiduously diversifying its strategic options. Assiduously होता है with great effort और action. ठीक है, डाइवर्सिफाई कर रहा है सऊदी अरेबिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को. इट हैज रिकंसाइल्ड एट लीस्ट टैक्टिकली विद इट्स आर्क एनिमी ईरान. तो आर्क एनिमी जो था ईरान अभी तक इसका सऊदी अरेबिया का, उसके साथ भी रिलेशंस काफी इंप्रूव किए हैं थ्रू चाइनीज मीडिएशन. चाइना के मीडिएशन. hosted the Chinese president for 3 summits in Riyadh as well. Apart from that, cooperated with Russia under the Organization of Petroleum Exporting Countries, plus debriefed for higher oil prices and facilitated the return of Syria to the Arab fold. So you see, now आपको बात समझ तब आएगी जब आप ये देखोगे कि इन कंट्रीज जिसके साथ सऊदी अरेबिया ने इन द पास्ट फ्यू ईयर्स अपने रिलेशंस इंप्रूव किए हैं, बेटर किए हैं, उनके रिलेशन जो है वो यूएस के साथ कैसे हैं. फिर आपको बात समझ आएगी कि दिक्कत क्या है यहाँ पे. ईरान के साथ यूएस की बिल्कुल नहीं बनती इस टाइम पे. ठीक है, ऑलरेडी ईरान पे सैंक्शन लगा चुका है यूएस. उसके बाद रशिया के साथ कल भी हमने डिस्कस किया था कि रशिया एंड यूएस नॉट एट गुड टर्म्स प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. एंड सीरिया को भी वापस अरब वर्ल्ड में, अरब फोल्ड में सक्सेसफुली सऊदी अरेबिया जो है वो ले आया है. So all these countries actually more or less not at good terms because Syria में जो गवर्नमेंट है देश असद की, सपोर्ट किसकी है वहाँ पे, रशिया की. ठीक है, सो अगेन यूएस यहाँ पे नहीं है दूर दूर तक. तो यू सी कि इन तीनों ही कंट्रीज के साथ जिसके साथ रिलेशन सऊदी अरेबिया ने कुछ टाइम पे इंप्रूव किए हैं, उन तीनों ही कंट्री के साथ ठीक नहीं. तो नाउ वी कुड अंडरस्टैंड ऑल दिस in your face Saudi initiative challenge the US interest. एक बात है, they disserve President Joe Biden's bid for re-election next year. Against this obstructive backdrop, the White House has waged a concerted campaign to persuade Saudi Arabia to normalize its relation with Israel. तो आपको बात समझ आ रही है क्यों इस टाइम पे काफी टाइम शांत रहने के बाद, काफी टाइम चुप रहने के बाद यूएस ने फिर से रेप्रोचमेंट जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया. वाई सो? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन जैसे इंडिया में इलेक्शन है वैसे वहां पे भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है यूएस में. तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंटरनेशनली आप कैसे कर रहे हो, एक लीडर क्या पोजीशन क्या है, कंट्री किस फ्रंट पे क्या एक्शन ले रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि डोमेस्टिक के लिए विक्ट्री के लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल भी तो कुछ ठीक चल रहा हो. The proposal has been on the Saudi table since November 2022. तो यूएस ने क्या प्रपोजल रखा है फॉर सऊदी अरेबिया? When the Saudi Crown Prince and Mr. Netanyahu had an unpublicized meeting. हाँ, तो इससे पहले कि 2020 में नवंबर में नेतान्याहू जो हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये लोग मिले थे इन सऊदी अरेबिया इटसेल्फ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो. तो रिलेशन जो है इंप्रूव करने की कोशिश 2-3 साल पहले से ही चल रही है. ठीक है, बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एज वेल, एंड मीडिएटर इज ऑफ कोर्स द यूएस. क्योंकि यूएस के रिलेशन आज से 2-3 साल पहले इन दोनों कंट्रीज के साथ बहुत जबरदस्त. ठीक है, आई विल बी कमिंग टू दैट व्हाई it has gained traction in recent months as well because of US national security has made visit to this Saudi Arabia. Alongside that, US Secretary of State as well paid visit to Saudi Arabia, and they were received by the Saudi Crown Prince himself. So this again shows warmth in the relation between Saudi Arabia and US. Apart from that, while the Saudis have not rejected the idea out of hand, they have reportedly put forth daunting preconditions said to include. Now, यूएस चाहता है कि सऊदी एंड इजराइल के जो रिलेशंस आपस में ठीक हों. ठीक है, एंड प्लस यूएस के रिलेशन जो है वो इन दोनों कंट्री के साथ ठीक हो. बट यूएस की जो मीडिएशन है बिटवीन सऊदी एंड इजराइल, उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस लगा रखे हैं सऊदी अरेबिया ने कि हम तब मानेंगे, तब हम रिलेशंस बेटर करेंगे सऊदी अरेबिया बिटवीन सऊदी एंड इजराइल, अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं. नाउ व्हाट आर दिस कंडीशंस?
So preconditions set to include North Atlantic Treaty Organization. So NATO like US security guarantees. NATO like US security guarantees for whom? For Saudi Arabia. Access to advanced American weapon system. Approval for the acquisition of civilian nuclear technology. And an Israeli commitment to a process leading to a two-state solution with Palestinians. The specifics are under negotiations among the three tight-lipped stakeholders. So three stakeholders here are Saudi Arabia, Israel, and US. Negotiations going on between these countries, and these are the preconditions actually proposed by or made by Saudi Arabia in order to improve their relations. ठीक है, तो इसलिए नाउ टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट टू आपको कंडीशन तो समझ आ गई होंगी, सिंपल है, बट टू स्टेट अगेन रिमेंबर हिस्टोरिकली सिंस द बिगिनिंग 1948 में इसराइल को इंडिपेंडेंस मिली एंड तब से इसराइल इज कंप्लीटली अ जीविश स्टेट. ठीक है, जीविश की पॉपुलेशन जो है उस यूएस में बहुत ज़्यादा है एंड जीविश पीपल आर वेल्दी पीपल. ठीक है, एंड पॉलिटिकली एक्टिव एज वेल. तो प्रेसिडेंट बिडेन के इलेक्शन में विक्ट्री इंश्योर करने के लिए जीविश की जो रोल है डोमेस्टिक फ्रंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तभी फेवर करेंगे जब इसराइल के साथ रिलेशन ठीक रहते हैं. ठीक है, so you got the point why it is important for US to bring this Israel in its fold again. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी ज़रूरी है कि चाइना इतनी मीडिएशंस कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस, बिकॉज यूएस हिस्टोरिकली यूज टू बी द कंट्री कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना. Pax Americana means American peace. That is, US is superpower and has to ensure the world peace. Therefore, US would be a mediator. At the same time, would be a force. You can see, US ने क्या क्या काम किए हैं, प्रॉक्सी वॉर्स भी किए हैं, अफगानिस्तान में भी आप देख सकते हो कि क्या किया. सो US used to be play both way at good and bad terms as well. So a convergence but with the different motives. Now talking about these two countries, हाँ टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं. इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस जो बात की गई है, देखो इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस. तो पैलेस्टीनियंस जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली अरब से आई हुई जनता है, माइग्रेटरीज, एंड दे आर मोस्टली मुस्लिम्स. जबकि जो इजरायली पॉपुलेशन है दैट इज ज्यूइश पॉपुलेशन. ठीक है, तो पहली तो बात सबसे जो कंटेंशन की बात है वो यही कि दोनों अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, दोनों साथ में नहीं रह सकती हैं बट रहना नहीं चाहती एक्चुअली. इसलिए पैलेस्टीनियन जो है वो अपने लिए अलग से एक सेपरेट कंट्री की सॉवरेन नेशन की डिमांड करते हैं एंड दे आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन कॉल्ड वेस्ट बैंक. जैसे ये अगर इजराइल है, ठीक है, फाइन, तो ये जो आपका एरिया है वी कॉल इट वेस्ट बैंक. ठीक है, ये जो है दिस इज बॉर्डरिंग जॉर्डन बेसिकली. तो वेस्ट बैंक की जो कहानी हो ये कि वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने 1948 वॉर में बिटवीन इजराइल एंड अरब वॉर इसको एनेक्स कर लिया था. इन 1967 अरब इजराइल वॉर, ठीक है, 6 डे वॉर चली थी ये, सीरिया, इजिप्ट एंड दिस जॉर्डन वर्सेस इजराइल. सो इसमें इजराइल की विक्ट्री हुई. तो अगेन इजराइल ने इसको वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया. ठीक है, फाइनली, एंड आज भी वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल के पास ही है. अब वेस्ट बैंक में जो मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है वो है आपकी इस्लामिस्ट पॉपुलेशन, स्पेशली द पैलेस्टीनियंस. ठीक है, एंड वो डिमांड करते हैं कि इस एरिया को सोवरेन कंट्री डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम मेजॉरिटी में है. बट इशू क्या है, वेस्ट बैंक में दो बड़ी इंपॉर्टेंट होली श्राइन्स हैं. एक है राम अल्लाह, राम और एंड अल्लाह. ठीक है, राम अल्लाह. डिफैक्टो सेंस में इसको राम अल्लाह को जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है जो कि वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, ठीक है, राम अल्लाह प्लेस, इसको ये अपनी डिफैक्टो कैपिटल मानते हैं. ठीक है, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन प्लस वेस्ट बैंक में ही एक जगह है, वहां पे है आपकी ये अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा मॉस्क. ठीक है, एंड इसी अल अक्सा मॉस्क में कंपाउंड है जो कि ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए भी होली प्लेस है.
न्यूज़ में कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है अल-अक्सा मॉस्क, ठीक है, बिकॉज अल-अक्सा मॉस्क में मुस्लिम पॉपुलेशन आती है, यहाँ पे कंपाउंड है, इसी कंपाउंड में एक जीविश की भी होली श्राइन है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चलती रहती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इसीलिए टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर दी है सऊदी अरेबिया ने कि इजराइल एक स्टेट होगा, सोवरिन स्टेट, और है ही ऑलरेडी, बट पैलेस्टीन को भी सोवरिन स्टेट की जो नो होना चाहिए, सो इसलिए टू सेपरेट स्टेट, टू नेशन थ्योरी की बात की है सऊदी अरेबिया ने। आई होप यू कैन रिकॉल टू नेशन थ्योरी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, सो ऐसी बात की है। So these are the preconditions of Saudi Arabia in order to improve its relation with Israel and US. So I hope कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलो क्विकली बात कर लेते हैं। तो अगर ये रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो तीनों कंट्रीज की क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड हाउ देयर मोटिव्स और इंटरेस्ट डिफर विद फ्रॉम ईच अदर. So while the US, Saudi Arabia and Israel may converge at the proposed reconciliation, their respective motives differ. First अगर हम US की बात करें, US की इंटरेस्ट की, मोटिव की, तो the Biden administration deeply concerned with the growing ingress by China and Russia in the Middle East. ठीक है, जैसे आपने देखा कि चाइना ने मीडिएशन की रोल निभाई, मीडिएट किया बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस बिकॉज दे वर आर्क राइवल एनिमीज, एंड रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है स्पेशली सीरिया रीजन में। तो एक तो ये कंसर्न है यूएस के लिए, देयरफॉर US wants to re-entrench the Pax Americana over the region by bringing two traditionally pro-West regional players together. तो यहाँ पे दो किसकी बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की एंड इजराइल की बेसिकली, ठीक है। पैक्स अमेरिकाना इज अमेरिकन लेड पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। It also feels that fostering such a reconciliation would ingratiate Mr. Biden with the two MIFT leaders. ठीक है, ingratiate होता है to gain favorable terms with, MIFT means annoyed, two annoyed leaders, जो कि कहीं ना कहीं काफी हद तक नाराज हैं यूएस से, ठीक है, because of reasons we have already discussed. Lastly, the powerful Jewish lobby's gratitude would help Mr. Biden win the US presidential election next year. So Jewish people has important role in US election especially. Next, Saudi motives and interests. So Saudi Arabia under the Saudi crown prince has adopted an assertive and ambitious foreign policy commensurate with its oil wealth to become primus inter pares. Now primus inter pares means is a Latin phrase which means first among equals or the representative of the whole group, ठीक है। तो Saudi Arabia wants to be the first among equals in the Middle East region and emerge as an important global player. By reconciling with Israel, it takes away the first movers advantage that the United Arab Emirates has had for the past 3 years as a member of Abraham Accords. छोटा सा आर्टिकल है बट इसमें बड़ी सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है। तो 3 साल पहले क्या हुआ था, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन से यूएई, जॉर्डन, बहरीन, इन तीनों ने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था इन ऑर्डर टू बेटर देयर रिलेशंस विद ईच अदर एंड विद ऑफ कोर्स इजराइल, ठीक है। तो ये 3 ईयर की जो 3 इयर्स की जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है यूएई की, उसको कम से कम जो सऊदी अरेबिया है want to get over it, ठीक है, wants to take away the first mover advantage of the UAE by establishing the relation with what, right, ठीक है। Moreover, diplomatic ties with Israel would balance the kingdoms recent reconciliation with Iran and Syria, ठीक है। सो ये भी एडवांटेज है कि अगर इजराइल से सऊदी अरेबिया अपनी रिलेशंस को ठीक करता है तो दिस recent reconciliation with Iran and Syria also be this favorable for the kingdom, that is South Kingdom, and it emerges as a more nationalistic power than an Islamic one, be more like a nationalist power, national, but as a more nationalistic power than just one Islamic country है। Despite its moves, Riyadh needs a stronger US security commitment and access to Israeli technology. You know, Israel is known for actually technology, ठीक है। The Saudi crown prince may however need to mitigate the skepticism about Israel at home
and within all South. क्योंकि इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के बीच में रिलेशन स्टार्टिंग से ठीक नहीं रहे हैं, बड़ी सारी दिस वॉर्स हुई हैं. अब्राहम अकॉर्ड जो है दैट इज एक्चुअली इट एस्टैब्लिशेस पीस बिटवीन द अरब कंट्रीज एंड द इजराइल. ठीक है, ये मोटिव है. तो इसलिए जो जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्केप्टिसिज्म, दैट इज डाउट अबाउट अ कंट्री, लेट अस से अबाउट इजराइल इन सऊदी अरेबिया और अमंग द सिटीजंस ऑफ सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी इज अ इस्लामिक कंट्री एंड इजराइल इज अ ज्यूइश कंट्री. और इन अरब एंड इजराइल के बीच में स्टार्टिंग से रिलेशंस अच्छे नहीं रहे. ठीक है, काफी वॉर्स भी हुई हैं. For Israel, now the third and last interest of this third player, a Star of David. Star of David is basically is a two equilateral triangle. अगर आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लैग है इजराइल के, उस पे आपको ये दिख जाएगा, इस तरह से बना. ठीक है, so this is basically called Star of David. Star of David flying in Riyadh would be a major geopolitical victory, symbolizing its final acceptance as a legitimate Jewish state by the center of Islam after 75 years as a regional outcast. तो स्टार्टिंग से ही अरब वर्ल्ड ने इजराइल को एक बड़े ही आउटकास्ट मैनर में ट्रीट किया है. इसलिए यू सी द मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स दैट इजराइल फॉट विद द अरब वर्ल्ड्स, अरब कंट्रीज, दिस कंट्रीज एक्चुअली. ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस जो है, it will establish Israel as a legitimate Jewish state, fine, given the acceptance by Saudi Arabia. Given the kingdom's trend-setting role as the custodian of Islam's two holy shrines, तो यहाँ पे किंगडम सऊदी अरेबिया की बात करें कि दो होली श्राइन्स हैं, जहाँ पे एज अ रिजल्ट जो सऊदी अरेबिया है इज अ ट्रेंड सेटिंग कंट्री और प्लेस ट्रेंड सेटिंग रोल एट द वर्ल्ड लेवल, दैट इज मक्का एंड मदीना. द रियाद एंड तेल अवीव, Riyadh is Saudi's capital, Tel Aviv is Israel's capital. They thought would herald Israel's integration with the Arab Islamic world. ठीक है, they thought होता है peaceful, relations, especially to arch rival or the enemies or unfriendly nations actually wants to improve their relations. ठीक है, in a peaceful manner. It would provide direct air and land access to Asia for Israel, enabling better leveraging of the economic opportunity as the economic center of gravity shifts eastwards. Eastward means towards India as well, because अगर मिडल ईस्ट से हम साउथ वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, रीजन की बोल देते हैं, तो उसे ईस्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स यू हैव देयर दिस ईरान, देन फर्दर मूविंग टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑल दीज रीजन्स की बात कर रहे हैं हम, एशिया के स्पेशली इन पर्टिकुलर. ठीक है, सो साउथ एशिया. द वाइडर इम्पैक्ट नाउ. So what would be the fallout, global fallout of this all? Global fallout from such a development would be quite profound. The Islamic mainstream would likely follow the Saudi lead, with countries such as Pakistan and Indonesia in the first row. So Israel के साथ ये countries भी relations को better करना चाहेंगी after bettering of the relation between Israel and Saudi Arabia, Pakistan and Indonesia as well. However, it would further marginalize the Palestinian cause and may polarize and radicalize them and other opponents such as ईरान, सीरिया, हेजबुल्ला, हमास एंड इस्लामिक स्टेट. तो इसराइल के साथ ईरान एंड सीरिया के भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. सो कहीं ना कहीं ये रिलेशन, ये जो इश्यूज हैं वो साइडलाइंस हो जाएंगी सेपरेट, फर्दर कहीं ना कहीं. प्लस हेजबुल्ला, हमास, दीज आर एक्चुअली द हमास, ऑलवेज यू सी हमास जो है वो रॉकेट से अटैक कर रहा है इन इसराइल. सो हमास एंड हेजबुल्ला, दीज आर कैन से टेररिस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसराइल यही मानता है. एंड इस्लामिक स्टेट आप सब लोगों को पता होगा, ISIS. Having invested considerable diplomatic capital in this quest, the US may eventually succeed despite the formidable odds, particularly as the Israeli government would have to moderate some of its hard-held policies. तो इसराइल स्पेशली अभी काफ़ी प्रेशर में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, स्पेशली पोस्ट दिस Israel this judiciary related reforms and all at domestic front as well. So therefore this provides a well ground for the US to actually improve relation with Israel. And even Israel is somewhere feeling helpless on this front. So of course this is both win-win situation for both the countries. Saudi-Israel rapprochement would have a mildly positive impact on India as well, because we share good relation with Saudi and Israel, both the countries. It would remove a contradiction in India's regional policy and better align Saudi Arabia with US. It may open opportunity as the US pushes back China from the region, but then it may also give Israel reasons to hyphenate
इंडिया विद इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूड, ठीक है। तो हाइफिनेट होता है टू सेपरेट, फाइन, टू ट्रीट सेपरेटली। so these are the positive things you can say. At last this negative as well somewhere, क्योंकि पाकिस्तान भी रिलेशन इंप्रूव करेगा, जैसे इंडोनेशिया पाकिस्तान की बात करें इजराइल के साथ, तो समवेयर वी कैन सी कि कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशंस इजराइल एंड पाकिस्तान के बीच में इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं होंगे, जो कि स्टार्टिंग से इजराइल ने हमारा साथ दिया है, ठीक है। सो बोथ गुड्स एंड बैड्स, ठीक है। So small piece of article but very very important, lots of things has been cleared through this single piece of article, ठीक है, especially related to the Middle East। आज के एडिटोरियल एंड आइडिया ओपिनियन पेज से यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस फैक्ट्स हम देख लेते हैं। लोकसभा conducts business even as opposition, okay, politics and all, okay, this is important। ISO bill paves way for more integration of three services, army, navy and एयरफोर्स की बात करें, थ्री सर्विसेज। आईएसओ क्या है, तो इसका इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का, इट सिक्स टू एम्पावर कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस। इंटर सर्विसेज मींस तीनों ही सर्विसेज के जो ये ऑफिसर्स हैं वो मिलकर काम करेंगे इन इंटीग्रेटेड मैनर with all disciplinary and administrative powers in respect of the personnel serving in or attached to such organizations. The ISO Bill 2023 is essentially an enabling act and it does not propose any change in the existing Service Act's rules regulations which are time tested and have withstood judicial scrutiny over the last 6 decades or more, ठीक है। So the bill would also pave the way for much greater integration and jointness amongst the three services, ठीक है। तो ऑपरेशन लाइक, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन में ज़रूरी है कि तीनों सर्विसेज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये साथ मिलकर के काम कर सके, इसलिए ये बिल है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द थ्री सर्विसेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउस पैनल्स बैट्स फॉर लोअरिंग मिनिमम एज टू कंटेस्ट पोल्स। तो वोटिंग एज जो इंडिया में है एंड वोट देने के लिए एंड वोट लेने के लिए जो एज है, मीन्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड कास्टिंग वोट दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक स्टैंडिंग कमेटी है, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इसने कहा है कि होल्डिंग दैट यंग इंडिविजुअल्स कैन बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स, reducing the age for contesting Lok Sabha and Assembly elections to 18 years, which is minimum age for voting in India, should be, discussed or be taken into account. But this view was altogether already, contested by the Election Commission of India, as it has said that it is unrealistic to expect an 18-year-old to possess the necessary experience and maturity for being members of parliament and state bodies. So you see इस proposal को कहीं ना कहीं election commission ने actually reject कर दिया है, ठीक है। At present जो है minimum age for a person to contest Lok Sabha and Assembly polls is 25 years, while one can become a member of the Raj Sabha or the State Legislative Council only at the age of 30 years, ठीक है। तो ये अभी present ages हैं for contesting elections, different for Lok Sabha and State Legislative Assembly and Raj Sabha and State Legislative Council. Okay, next. Okay, Hindi is not in competition with local languages said by Union Home Minister. Okay, कुछ states हैं साउथ की जो टेस्ट कर रही हैं against this Hindi, so कहा कि it's not competing with the local languages. Pakistan has passes the bill to meet FATF demands. FATF is Financial Action Task Force, जिसने की actually it undertakes the this or regulates the this international money laundering and terrorist funding related operations, ठीक है। तो उस पर ये चेक रखता है FATF, ठीक। एंड देयरफॉर FATF ने ग्रे लिस्ट में पुट कर दिया था इस पाकिस्तान को, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेरर फंडिंग एंड ऑल। तो फाइनली
FATF की जो डिमांड्स हैं to improve on these grounds actually related to money laundering and terror funding, उसके लिए फाइनली पाकिस्तान के असेंबली दिस पार्लियामेंट ने बिल पास किया इन दोज डिमांड. तो DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सस्पेंड हिज लैपटॉप PC इंपोर्ट कब्स टिल November 1. क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी इंपोर्ट्स हो रही हैं, जो ऑलरेडी ट्रांजिट में है, उनका क्या, इसलिए इसको November 1 से इन इफेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अभी कल से नहीं, ठीक है, जैसा कि 2 अगस्त को हमने देखा था, ऑर्डर आया था. So now finally we've landed on the sports page. So that's it. We have discussed whatever important things were there from the today's Hindu paper. ठीक है, अब क्विकली हम आपका होमवर्क देख लेते हैं. दैट इज क्वेश्चंस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम जो आपको सॉल्व करना है. ये है क्वेश्चंस आज के न्यूज़पेपर से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया इज 18 years. Second statement, at present the minimum age for a person to contest Lok Sabha and Assembly polls is 25 years. And third statement, while one can become a member of Rajya Sabha or the State Legislative Council at 30 years. Choose the right pairs. सिर्फ पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट है. पेयर्स में आंसर देना, रिमेंबर, नॉट द स्टेटमेंट वाइज. या तीनों के तीनों ही ये स्टेटमेंट्स ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी से रिलेटेड है. दैट इज, डू यू थिंक दैट ब्रिंगिंग द एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू लोक सभा एंड स्टेट असेंबली इन पैरिटी टू वोटिंग एज वुड डीपन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन इंडिया? आपने इसको डिस्कस करना है. एंड आज चेंज ये है कि आपको इस आंसर को 15 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स में लिखना है, ना कि 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स में, जो कि अभी तक हम करते आए हैं. फाइन. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट फॉर प्रीलिम्स, सेकंड फॉर मेंस. ठीक है, तो ये आपने करना है, हम मंडे को डिस्कस करें. फाइन. So that's it from my side. If you have any query, anything, any issue, you can put the same in the comment section. Otherwise, do revise whatever you have discussed and write your answers as well. Try to come up with the right answers as well, and stay tuned for analysis.